Hello everyone. In this part, we will discuss bacteriophage. Bacteriophage. In our previous lecture, we discussed viruses, the characteristics of viruses, nature of viruses, structure of viruses, types of viruses. And today we are going to discuss one more type of viruses. Those are known as bacteriophages. जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, राइट? वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड वायरसेस एक तरह से हम कहते हैं कि वेरी यूनिक है क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट और किल करते हैं। ओके, दोज आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। इफ आई विल डिफाइन बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस are those viruses which infect bacteria and kill them. These are known as bacteriophages. Bacteriophages are those viruses which infect bacteria and kill them. They are also called as bacterial viruses. Bacterial viruses. But ये जो bacterial viruses हैं, ये बड़े यूनिक हैं because these bacterial viruses are bacteriophages only infect bacteria. Only infect bacteria. That means these bacteriophages are specific in their action. Their target is fixed. They just infect bacteria. They just infect bacteria. These bacteriophages were discovered independently by a British bacteriologist, Frederick Tawat in 1950, and a French Canadian microbiologist, Canadian microbiologist Flex de Hale in 1970. Both these scientists, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जिनका नाम था फेडरिक टॉवर्ट 1915 में, एंड फ्रेंच कैनेडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्लेक्स डी हेरियल 1917 में। इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया बैक्टीरियोफेजेस को? दे वर इन्वेस्टिगेटिंग सम सॉइल बैक्टीरिया को ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, and they found during their investigation that if a drop of highly concentrated viruses is poured
or place in a solid bacterial culture medium. There was no growth of bacteria. So, suppose this is solid bacterial culture medium in which various soil bacteria are to be cultured. If a drop of highly concentrated viruses is placed into this dish, there will be no growth of bacteria. No growth of bacteria. It was found by these two scientists independently. Right? They found, उन्होंने क्या पाया? That there was no growth of bacteria. That means these bacteria were, eaten by viruses. And they called these viruses as bacteriophages, which literally means eaters of bacteria. Which literally means eaters of bacteria. Eaters of bacteria. Because phagein, Phagein, means to eat. In this way they discovered the bacteria. एक बार फिर आपको मैं बता दूं, in this way they discovered these bacteriophages. I'm sorry. इस तरह से इन्होंने क्या बोलते हैं इन बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया. अगर आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि टॉवर्ट एंड डी हेरियल independently they discovered बैक्टीरियोफेज. कैसे उन्होंने डिस्कवर किया? बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सम सॉइल बैक्टीरिया, राइट? और उन्होंने पाया कि अगर हम सॉलिड बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में हाईली कंसंट्रेटेड ड्रॉप्स ऑफ वायरसेस पोर करेंगे, प्लेस करेंगे, यहां पे इस सॉलिड कल्चर बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा. देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. एंड दे फाउंड द बैक्टीरिया वर डेड बैक्टीरिया वर इन दिस सॉलिड बैक्टीरियल कल्चर मीडियम. So they named these as bacteriophages, which literally means eaters of bacteria, because phagid means to eat. Okay, this was the way how these bacteriophages were discovered. Now, bacteriophages are like other viruses. These are, ये आपको पता है कि obligate parasites होते हैं ये बैक्टीरिया, bacteriophages, right? इवन फॉर दैट मैटर तमाम वायरसेस जो होते हैं ये क्या बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. फ्री लिविंग मोड ऑफ लाइफ इनमें नहीं होता है. तो ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया को किल करते हैं, अटैक करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं इनकी तादाद कितनी है. अगर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन ये जो बैक्टीरिया है, इनको मिला के अगर हम देखेंगे इनका नंबर क्या है, उससे 1000 गुना ज्यादा बैक्टीरियोफेजेस की तादाद होती है. There are 1 billion times more bacteria, 1 billion times more bacteriophages on Earth than the total number of stars in observable universe. ये जो यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितनी तादाद स्टार्स की है, उसको जब कंपेयर किया जाता है बैक्टीरियोफेजेस की तादाद के साथ, हम ये कहते हैं कि 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है तादाद बैक्टीरियोफेजेस की इन स्टार्स से. अगर मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर हम मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये जो 3 दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स हैं, इनकी वेल्थ को हम अगर ऐड करेंगे तब भी 100 मिलियन टाइम्स
कम है इनका पैसा than the number of bacteriophages. If the net worth of Bill Gates and मार्क ज़ुकरबर्ग, ये जो फेसबुक का ओनर है, वॉरेन बफेट, if we add their wealth together and multiply that wealth, that worth by 1 trillion से इनकी wealth को अगर हम multiply करेंगे, still this money will be 100 million times lesser than the total number of bacteriophages on earth. Okay? So, they outnumber anything in the world. They are all around here on the earth planet. Right now I am talking to you. अगर देखा जाए, there are millions of bacteria on my hands, on my eyelids, in my intestine. Millions, billions of bacteriophages, I may say. Okay? This is their number. This is their number. But one must be very, worried about the, enormous number of bacteriophages. Obviously. But no, there is nothing to worry. Because these bacteriophages are only bacteria specific. They just attack and infect bacteria. ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन बैक्टीरियोफेजेस की जो ज्यादा तादाद है, उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई खतरा नहीं है. They don't attack, infect other living organisms. They just attack bacteria. In a single day, in oceans में एक दिन में, in a single day, 40% of bacteria are killed by bacteriophages. This is their, number. Now, regarding their occurrence, these are present everywhere. Where there are, bacteria. Bacteriophages are present everywhere. Where there are bacteria. जहां पे उनको बैक्टीरिया मिलेगा, वहां पे ये होते हैं. They can occur in soil, they can occur in fruits, vegetables. ये आपको मिल्क में मिलेंगे, ये आपको नेजल एक्सुड्यूट जो हमारा होता है इसमें मिलेंगे, ये आपको पास में मिलेंगे. जहां जहां भी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो होते हैं हमारे, उनमें आपको ये मिलेंगे. अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हमारी बॉडी में 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, राइट? कितना बहुत ज्यादा तादाद है सेल्स की. लेकिन यहां पे 90% हमारी सेल्स में बैक्टीरिया होते हैं. 10:1. 90% बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेजेस की बात करता हूं. लिहाजा इन बैक्टीरियोफेजेस की तादाद बहुत सारी है. ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को आउटनंबर करते हैं. लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है. लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए ये अलार्मिंग नहीं है, खतरा नहीं है, क्योंकि कुदरत ने इनको बैक्टीरिया स्पेसिफिक बनाया है. ये खास किस्म के बैक्टीरिया स्पीशीज स्ट्रेन्स को अटैक करके इन्फेक्ट करते हैं, किल करते हैं, राइट? दिस इज देयर नंबर. ओके, नाउ the types of bacteriophages. Types of bacteriophages. Let us discuss now the types of bacteriophages. Types of bacteriophages. Types of bacteriophages. Types of bacteriophages. There are many types of bacteriophages. But one most common type and extensively studied type of bacteriophages, आपको बता दूं, है that is T phages. T phages. T phages. Here T stands for type.
These are most extensively bacteriophages, T phages. Type, T stands for type. यहाँ पे T stands for type. Okay, and these T phages are in T series. These occur in T series. And this T series stands from T1 to T7. As जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. All these T phases, जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं, जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, T phase जो है, these occur in T series, right? This T series starts from T1 to T7. All these T phases have been broadly classified, have been broadly grouped into three types. इन T phases को जो T series पे T1 से T7 तक occur होते हैं, right? इनको तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1, T even bacteriophages. Number 2, T odd bacteriophages. And number 3, T5 bacteriophages. Right? Let us come to T even bacteriophages. देखिए T2, T4 and T6 ये T odd even bacteriophages इनको कहते हैं. Among these three, इन तीन में से T even, T odd and T5 bacteriophages पे commonly used, आपको अगर मैं बता दूं, commonly investigated, right? बैक्टीरियोफेजेस जो है वो है T even बैक्टीरियोफेजेस, T2, T4, T6, इनको T even बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. ये बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, ये नॉर्मली इनका डीएनए जो होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट? ओके, ये इनका पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक है T even बैक्टीरियोफेज का. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, राइट? मोस्ट कॉमन है, ठीक है? इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इनकी बॉडी में हेड और टेल होता है, टू पार्ट्स होते हैं, एंगुलर हेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, विच कैन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल. थोड़ी देर बाद मैं इन T2 बैक्टीरियोफेजेस का डिटेल में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, राइट? और एक खास बात इनमें होती है T even बैक्टीरियोफेजेस में, इनमें नाइट्रोजनस बेस जो होती है, नाइट्रोजन बेस, साइटोसिन, पाइरिमिडीन बेस जो है, आपको पता है हमारे पास दो किस्म की बेसेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन. इनमें जो साइटोसिन होता है वो नाइट्रोजनस बेस, पाइरिमिडीन बेस जो होती है, उसमें ये नॉर्मल टाइप की साइटोसिन नहीं होती है. मैं T even बैक्टीरियोफेजेस की बात करता हूं. इनमें 5 हाइड्रोक्सी साइटोसिन होता है. 5 हाइड्रोक्सी साइटोसिन. ये जो मिथाइल ग्रुप इनमें होता है ना, साइटोसिन पे मिथाइल ग्रुप T even बैक्टीरियोफेजेस में, ये इन बैक्टीरियोफेजेस को बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाता है. और ये 5 हाइड्रोक्सी साइटोसिन बेस जो होती है T even बैक्टीरियोफेजेस में, ये इनको जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में मदद करती है. क्योंकि आपको इसके बाद जेनेटिक्स में हमने अगले क्लासेस में जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो ऑन और ऑफ हो जाते हैं. जैसे जब उनकी जरूरत पड़ती है तब वो ऑन किए जाते हैं बाय अ मैकेनिज्म, जिसको जीन रेगुलेशन कहते हैं, और जब उनकी जरूरत नहीं पड़ती है उनको ऑफ किया जाता है. ठीक है ना?
और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा मॉलिक्यूलर सिस्टम्स में, मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस में ऑन ही रहते हैं, उनको ऑन जीन्स कहते हैं, जैसे हाउसकीपिंग जीन्स। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो टी इवन बैक्टीरियोफेजेस मैं आपको बता रहा हूं, ये डबल स्ट्रैंडेड बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। नंबर वन, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, एक टेल और एक हेड इनके पास होता है, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनमें टेल नहीं होता है, राइट। तो ये उन बैक्टीरियोफेजेस को बिलोंग करते हैं जिनमें एक एंगुलर हेड होता है और एक टेल होता है, लेकिन ये टेल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है, दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, आई मीन टू से, ओके। और इसके अलावा इन टी इवन बैक्टीरियोफेजेस में ये जो नाइट्रोजन बेस साइटोसिन होती है, ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है, क्योंकि इनमें जो मिथाइल ग्रुप होता है इसकी बड़ी सारी फंक्शंस है। एक ये है कि ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को ये मिथाइल, ये जो ग्रुप होता है साइटोसिन बेस पे, ये इनके जीन्स को ऑन एंड ऑफ रखने में मदद करता है। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये ऐसे बैक्टीरियोफेजेस, टी इवन बैक्टीरियोफेजेस, जब बैक्टीरिया को अटैक और इन्फेक्ट करते हैं, ये उस बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के खिलाफ एक शील्ड होता है, ये उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को फेल करता है, मिथाइल। ओके, दिस इज टी इवन बैक्टीरियोफेज। इसके बाद है टी ऑड। देखिए, T3, T1, T3 एंड T7 बैक्टीरियोफेजेस, ये टी ऑड बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं। ठीक है, इनकी सिमिलैरिटी है टी इवन बैक्टीरियोफेजेस के साथ, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर भी हेड और टेल जैसा होता है, लेकिन इनका ये जो स्ट्रक्चर टेल होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टेल नहीं होता है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल उतने ज्यादा ये कॉमनली एक्सटेंसिवली यूज्ड बैक्टीरियोफेजेस नहीं होता है। मैं किनकी बात करता हूं? टी ऑड बैक्टीरियोफेज। कौन है टी ऑड बैक्टीरियोफेज? T1, T3, T7। कैसे ये डिफरेंट है टी इवन बैक्टीरियोफेज से? टी इवन बैक्टीरियोफेज से ये डिफरेंट ऐसे है कि इसका भी स्ट्रक्चर हेड एंड टेल इसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनके पास जो टेल होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टेल नहीं होता है, वो टेल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है। एक डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस, टी इवन बैक्टीरियोफेजेस पे 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन होता है, इनमें नॉर्मल साइटोसिन होता है। ये जो नाइट्रोजनस पाइरिमिडीन बेस साइटोसिन होता है वो नॉर्मल होता है, दैट मीन्स उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। ये इनका फर्क है। ओके, इसके बाद हम आ जाएंगे टी फॉज में। ये भी आपको टी ऑड ही लग रहा था, लेकिन सिमिलर ये टी ऑड बैक्टीरियोफेज से डिफरेंट एक कैरेक्टर में। देखिए, इसका भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, T5 बैक्टीरियोफेज, सॉरी टी ऑड बैक्टीरियोफेजेस की तरह। ओके, इसका भी नॉर्मल साइटोसिन पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होती है, लेकिन अगर हम डिफरेंस देखेंगे टी ऑड और T5 बैक्टीरियोफेज में, टी ऑड बैक्टीरियोफेज का नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल बट शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, while as T5 बैक्टीरियोफेज का नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है लेकिन लॉन्ग। दिस इज इट इज द रीजन व्हाई दिस T5 has been separated from T odd bacteriophage, because only difference which it shows, जो ये दिखाता है T odd bacteriophage से, कि इनका टेल लंबा होता है, जबकि T odd bacteriophage का टेल शॉर्ट होता है। बाकी इनका भी टेल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है,
इनका भी टेल नॉन कंट्रैक्टाइल होता है, किनका, टी ऑड बैक्टीरियोफेज का और T5 बैक्टीरियोफेज का, राइट। ओनली डिफरेंस जो इनकी है अगर हम देखेंगे, T5 बैक्टीरियोफेज का टेल लंबा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग नॉन कंट्रैक्टाइल टेल, वाइल टी ऑड बैक्टीरियोफेज का शॉर्ट नॉन कंट्रैक्टाइल टेल होता है। यह आपको क्लियर हो रही है, होगी आई होप। तो साइटोसिन बेस की अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजन पाइरिमिडीन बेस, इनमें दोनों में, टी ऑड में भी, T5 बैक्टीरियोफेज में भी, राइट। साइटोसिन बेस जो होती है वो नॉर्मल होती है, वो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन बेस नहीं होती है, उसमें मिथाइल ग्रुप साइटोसिन बेस में नहीं होता है, राइट। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इन टी ऑड, टी इवन एंड T5 बैक्टीरियोफेज में सबसे कॉमन अगर देखा जाए वो टी इवन बैक्टीरियोफेज है, और टी इवन बैक्टीरियोफेजेस में अगर सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाए दैट इज T2 बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्ट ने किए हैं तो वो T2 बैक्टीरियोफेज पे किए गए हैं, ठीक है। तो लिहाजा बैक्टीरियोफेज को का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे इन बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है, राइट। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज, तो अब तक आपको पता है, you know that T2 bacteriophage is T-even bacteriophage. Very commonly, very extensively discussed bacteriophage, right? Used bacteriophage. ठीक है। ये जो T2 bacteriophage है, ये बहुत सारे बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है, किल करता है, लेकिन इसका जो कॉमन होस्ट होता है दैट इज E. coli. E. coli, एस्केरिकिया कोलाई, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। लिहाजा इस E. coli को, ठीक है ना, इस बैक्टीरियोफेज को कोलन बैसिलस भी कहते हैं, कोलन बैसिलस भी कहते हैं, राइट। और ऐसे बैक्टीरियोफेज जो इंटेस्टाइन्स में रहते हैं कॉलीफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा? कॉलीफेज, राइट। ये है T2 बैक्टीरियोफेज जो E. coli को कॉमनली इन्फेक्ट करता है, लिहाजा इसको कोलन बैसिलस कहते हैं। ऐसे बैक्टीरियोफेज जो इंटेस्टाइन में रहते हैं कॉलीफेजेस कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे, लेट अस सी, इट हैज 2 मेन पार्ट्स, हेड एंड टेल, राइट। दिस इज हेड पोर्शन and this is tail, right? Let us discuss first head. इसका जो हेड होता है it is polyhedral head which has 20 faces, 30 edges, many faces and many edges इसमें होते हैं, polyhedral, right? Polyhedral tail, polyhedral head, sorry, like this, आप देख रहे हैं। The central part of this head consists of nucleic acid. Which is the nucleic acid? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। This is known as डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको कोर भी कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट होता है। कोर, the central part of the head which consists of nucleic acid, which nucleic acid? DNA, is known as core or central part or central part of the head. इस कोर के बाहर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसको प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं, which is called as protein coat or capsid, right? This is head, ठीक है। नाउ अगर मैं जल्दी में आपको बता दूं कि हेड के 2 पार्ट्स होते हैं, बीच वाले पार्ट को कोर कहते हैं, CORE कोर,
इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, कौन न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए। और इस कोर सेंट्रल पार्ट के बाहर एक कवरिंग होती है, एक कोट होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन्स का बना होता है, ये प्रोटीनेशियस कोट होता है, लिहाजा इसको प्रोटीन कोट भी कहते हैं। ये हेड के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। अब दिस हेड इज कनेक्टेड टू ए सिलेंडर टेल, बड़ा सिलेंडर थिन किस्म का एक टेल होता है, ठीक है ना। दिस टेल इज कॉन्ट्रैक्टाइल, दिस टेल इज कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इट इज कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ ऑफ प्रोटीन्स। वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का बना होता है ये टेल, ठीक है ना। और यहां पे हेड और टेल जहां पे मिले हैं ना कनेक्शन, इसको कॉलर रीजन कहते हैं। दिस इज नोन एज, आई एम टेलिंग यू, यहां पे इसको कॉलर रीजन कहते हैं, कॉलर रीजन, राइट। ये टेल जो होता है दिस इज हॉलो, ये एम्प्टी होता है और ये कवर किया गया होता है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ ऑफ प्रोटीन्स। किस चीज का बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ ऑफ प्रोटीन, दोज प्रोटीन्स व्हिच कैन कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द टेल। अगर हम देखेंगे ये एंड ऑफ द टेल जो होता है दिस इज नोन एज एंड प्लेट और बेसल प्लेट। ये भी हेक्सागोनल होता है, दिस एंड प्लेट इज आल्सो हेक्सागोनल, ठीक है ना। एंड प्लेट, इस एंड प्लेट में अपर साइड में, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टेल फाइबर्स कहते हैं। ये लंबे होते हैं टेल फाइबर्स अपर साइड, और लोअर साइड में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टेल पिन्स कहते हैं। टेल फाइबर्स एंड टेल पिन्स, क्या डिफरेंस है टेल फाइबर्स और टेल पिन्स में? टेल फाइबर्स एंड प्लेट यानी कि बेजल प्लेट यानी कि एंड ऑफ द टेल के ऊपर साइड में होते हैं जिनको टेल फाइबर्स कहते हैं, जबकि लोअर साइड में, अंडर साइड में टेल एंड प्लेट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको टेल पिन्स कहते हैं। और क्या डिफरेंस है टेल फाइबर्स और टेल पिन्स में? टेल फाइबर्स लंबे होते हैं, ठीक है, जबकि टेल पिन्स छोटे होते हैं लेंथ में, राइट। और क्या डिफरेंस होती दोनों अगर आप देखेंगे, ये जो टेल फाइबर्स और टेल पिन्स होते हैं, ठीक है ना, दीज स्ट्रक्चर्स मदद करते हैं फेज को सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होने में। जब भी कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल के साथ जब ये बैक्टीरियोफेज जुड़ जाता है ना, ये टेल के साइड से नहीं हेड के साइड से नहीं जुड़ता है, ये बेसिकली टेल के साइड से, क्योंकि इन्हीं टेल फाइबर्स और टेल पिन ये एडहियर हो जाता है इसके साथ, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के साथ। और अगर मैं आपको यहां पे बता दूं, जो मैं आपको बताने वाला था कि ये टेल फाइबर्स और टेल पिन्स की तादाद जो होते हैं 6 टेल फाइबर्स एंड 6 टेल पिन्स, 6 ये भी 6 होते हैं और ये भी 6 होते हैं, ठीक है। और इन टेल फाइबर्स और टेल पिन्स की ये फंक्शन है जो मैं अभी बोल रहा था आपको, ये सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियोफेज को अटैच होने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन टेल फाइबर्स और टेल पिन्स में आपको पता है एंजाइम्स होता है, लाइसोजाइम मेनली जिसमें होता है, जो बैक्टीरियोफेज को, जब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है, ठीक है ना, वहां पे बैक्टीरियल सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? बिकॉज की टेल पिन्स और टेल फाइबर्स में एंजाइम होता है, पर्टिकुलरली लाइसोजाइम, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज T2। जैसे इसमें हेड और टेल होता है, हेड के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल पार्ट को कोर कहते हैं, कोर जो है ये डीएनए के बना हुआ होता है। इस कोर पार्ट के बाहर एक कवरिंग, एक कोट होती है जिसको प्रोटीन कोट कहते हैं, राइट। और फिर टेल होता है, ये सिलेंडर टेल होता है, जहां पे हेड और टेल मिले हैं उस रीजन को कॉलर रीजन कहते हैं। टेल बेसिकली हॉलो है, एम्प्टी है, लेकिन बाहर से कॉन्ट्रैक्टाइल शीट ऑफ प्रोटीन से कवर किया गया है।
जो एंड होता है टेल का उसको एंड प्लेट कहते हैं, बेजल प्लेट कहते हैं। बेजल प्लेट पे दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं, टेल पिन्स होते हैं। टेल पिन्स नीचे साइड से, टेल फाइबर्स ऊपर साइड से, ठीक है ना। ये टेल पिन्स और टेल फाइबर्स की तादाद 6 होती है, वो भी 6 नंबर होते हैं। टेल पिन्स, टेल फाइबर्स भी होते हैं, और इससे ये इसकी मदद से ये बैक्टीरियल सेल यानी कि होस्ट सेल के साथ अटैच होते हैं और कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का, राइट। अब हम कहेंगे कि ये बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल कैसे है, किस किस्म का होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। आपको बता दूं कि ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, ठीक है, इसमें 2 किस्म के बैक्टीरियोफेज जो है, ये आपको बता दूं, ये 2 किस्म के क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल दिखा सकते हैं। एक लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज का लाइटिक जैसे बोलते हैं, लिटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और दूसरा है ओके लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। सिंपल सी बात है, लिटिक लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। अगर मैं आपको यहां समझा दूं, ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये एक बैक्टीरियल सेल है, 2 बैक्टीरियल सेल्स को मैं लेता हूं, ठीक है। यहां पे इसको भी बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया है, इसको भी बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। इसका ये बैक्टीरियोफेज का हेड और टेल मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लिटिक लाइफ साइकिल में। जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यहां पे बैक्टीरियल सेल का अपना भी डीएनए होता है, ठीक है। जो ही ये इन्फेक्ट इंजेक्ट करे, क्योंकि आपको मैं एक बात कहना भूल ही गया, ये जो एंड प्लेट होता है ना, वहां पे एंड प्लेट के बीच में एक परफोरेशन, एक पोर होता है, जिस पोर के जरिए वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंजेक्ट करता है इनटू द बैक्टीरियल सेल। मैं अभी बात करता हूं लिटिक लाइफ साइकिल की। यहां पे एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसको बैक्टीरियोफेज ने क्या बोलते हैं इन्फेक्ट किया है। ये बैक्टीरियोफेज आ गया, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, इसके पास जो टेल फाइबर्स और टेल पिन्स थे ना, उसकी मदद से ये बैक्टीरियल सेल सरफेस के साथ जुड़ गया, अटैच हो गया, ठीक है ना। फिर टेल एंड प्लेट के जरिए अपने क्या बोलते हैं डीएनए को बैक्टीरियोफेज ने इंजेक्ट किया, उसी तरह से जिस तरह से वो सिरेंज में जब किसी को इंजेक्शन करते हैं, सिरेंज ये जो इंजेक्शन के दौरान में जो फ्लूइड वगैरह बॉडी में चला जाता है, उसी तरह से ये अपने डीएनए को, वायरस अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, ओके। फिर क्या होता है, जब बैक्टीरियल सेल में ये दाखिल हो गया, अब हमारे पास इस बैक्टीरियल सेल में 2 किस्म के डीएनए, एक बैक्टीरिया का अपना जिसको बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं, एक वायरल डीएनए, राइट। जो ही अंदर चला जाता है, ये यहां पे बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। अंदर जाने के साथ ही ये बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, ओके। आप ये दूसरे स्टेप में बैक्टीरियल डीएनए आप मानिए ये डिस्ट्रॉय हो गया, बिखर गया, स्कैटर्ड, आप कौन सा रह गया, वायरल डीएनए, ठीक है। वायरल डीएनए क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट हो गया, इसने अपनी कॉपी बनाई, राइट, एंड अल्टीमेटली ये सेल डिस्ट्रॉय हो गई, बैक्टीरियल सेल, और नए बैक्टीरियोफेजेस बन गए, राइट। ये बैक्टीरियोफेज, तो इसको लिटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। Lysis means breakdown. In such a type of life cycle in which the infecting bacteriophage destroys the bacterial cell and its DNA, such a life cycle is known as lytic life cycle. ये T2 bacteriophages में common है, right? Now come to the lysogenic life cycle. Lysogenic life cycle कैसे? ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ये बैक्टीरियल सेल है, राइट, फेज ये है जिसने इसको इन्फेक्ट किया है, राइट। इसने अपने क्या बोलते हैं
डीएनए को इंजेक्ट किया, यहां बैक्टीरियल सेल का डीएनए था, राइट। यहां जो ही ये वायरल डीएनए इंजेक्ट हो जाता है लिटिक लाइफ साइकिल में, ये बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, लिटिक लाइफ साइकिल में डिस्ट्रॉय करता था, यहां ऐसा नहीं होता है। यहां ये जो वायरल डीएनए है, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विद द बैक्टीरियल डीएनए। यहां पे ये एंटर हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए में। बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है, राइट। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, इसका अपना एक बैक्टीरियल डीएनए था, इसमें वायरल डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। तो ये वायरल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के पास अब वायरल डीएनए भी है। बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है एवरी टाइम। जब ये बैक्टीरियल सेल 2 बनाती है, 3, 4 बनाती है, हर किसी बैक्टीरियल सेल में, ठीक है ना, एक डीएनए होता है जिसमें वायरस का एक फ्रेगमेंट जरूरी होता है, ठीक है ना। सेल तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई ना, ठीक है, यहां पे तो सेल डिस्ट्रॉय होती थी, डीएनए डिस्ट्रॉय होता था। यहां लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में जो ही वायरल डीएनए एंटर हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल के डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वहां पे डॉर्मेंट रहता है, राइट। तो फिर बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, ठीक है ना। हर जो नई कॉपीज होती है बैक्टीरियल सेल की, उस पे डीएनए जो होता है उसमें जरूर एक हिस्सा, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ वायरल डीएनए भी होता है, ठीक है। तो लिहाजा फिर अल्टीमेटली ड्यू टू किसी बैक्टीरियल सेल में सिट्रस हो जाता है, या कोई बैक्टीरियल सेल में म्यूटेजेनिक एजेंट्स को एक्सपोज हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एक्सपोज हो जाती है, केमिकल्स को एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल का जो वायरल डीएनए का फ्रेगमेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के साथ ही वो फिर लिटिक लाइफ साइकिल दिखाना शुरू करता है। लिहाजा ये जो लिटिक लाइफ साइकिल है, इसको विरुलेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। जबकि इस लाइफ साइकिल को, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को, इसको एविरुलेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, या ऐसे फेजेस को टेम्परेट फेजेस कहते हैं, या ऐसे फेजेस को प्रोफेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वायरस का डीएनए होता है ना, वो बैक्टीरिया के डीएनए में चुपचाप रहता है, ठीक है। तो लिहाजा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिक लाइफ साइकिल एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। जल्दी में एक बार फिर बता दूं आखिर में, ये जो लिटिक लाइफ साइकिल में है, जो ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है, वायरस डीएनए जो होता है, वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल सेल के डीएनए को और अपनी कॉपीज बनाता है, पूरा सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है, डीएनए को भी डिस्ट्रॉय करता है। जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में वायरल डीएनए जब इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल में, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, वहां पे ये डोरमेंट रहता है। बैक्टीरियल डीएनए मीन्स की बैक्टीरियल सेल जो होती है वो डिवाइड होती है, और हर डिवीजन के बाद जो कॉपीज बनती है, डॉटर बैक्टीरियल सेल्स बनती है, उनमें वायरस के डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बढ़ता जा रहा है, तो अल्टीमेटली जब ये बैक्टीरियल सेल एक्सपोज हो जाती है केमिकल्स को, इसका वायरल डीएनए पार्ट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो फिर ये एंटर हो जाती है लिटिक लाइफ साइकिल में। ऐसा लाइफ साइकिल आपको मिलेगा लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज में, जबकि ये आपको मिलेगा T2 बैक्टीरियोफेज में। दिस इज शोन बाय लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू। आई होप दैट यू माइट हैव got some points about bacteriophage. In our next video lecture we will discuss another topic. Thank you. Till then, bye. Okay.